Assalamualaikum to everyone. Today we will discuss about the derivation of the equation of motion. ठीक है, आज हम करेंगे equations of motion को derive on the calculus approach and graphically approach. Stay with me. Let us start with the first equation of the motion that is based on the calculus approach. V is equal to u plus at. बच्चों कॉमन इसे हम बोलते हैं velocity time relation. There are the three types of the equations in motion. One that is V is equal to u plus at. Second, S is equal to ut plus half times at square. And the third that is V square minus u square is equal to 2 times as. ठीक है, तो हम यहाँ पर पहली equation of motion को derive करने जा रहे हैं on the calculus approach. Where V is the final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration, t is time. Suppose a body has the initial velocity u at the position a. बच्चों यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या एक बॉडी है. सपोज यहाँ पर जो हमने बॉडी लिया दैट इज द अनाया. ठीक है, यहाँ पर एक लड़की का नाम लिया मैंने अनाया. तो यहाँ पर ये अपनी वेलोसिटी यानी अपना जर्नी स्टार्ट कर लेती है. जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u एट द पोजीशन a, तो a पोजीशन पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है u. ड्यूरिंग टाइम इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम क्या था जीरो, तब जाके इस लड़की अनाया की जो यहाँ पर वेलोसिटी थी दैट इज u. से इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. तो हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये लड़की है ये अपनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर लेती है किस टाइम में, आफ्टर द टाइम t. इट रीचेस द पोजीशन b. जब इसने एक्सेलरेट किया, अपनी बॉडी को एक्सेलरेट किया, ठीक है, तब जाके ये लड़की पहुंच गई फ्रॉम a पॉइंट टू b एट द टाइम t. अगेन इज द फाइनल वेलोसिटी v. तो यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या बन गई, दैट इज v. सिंस अ बॉडी चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, तो यहाँ पर पता चल गया कि जो यहाँ पर एक लड़की है अनाया, ठीक है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. टाइम के साथ साथ ये अपनी वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज. तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन है दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय t. एक्सेलरेशन क्या होती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इट माइट गॉट द सम एक्सेलरेशन. जब यहाँ पर ये अनाया अपनी पोजीशन अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है तो इसमें क्या आती है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी और वी से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. So according to the differentiation concept, that is acceleration is equal to dv by dt. That is acceleration is equal to dv by dt. Where dv that is rate of change of velocity in due course of time, that is t. a into dt. तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं a into dt that is equal to dv. तो dv is equal to a into dt. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, dv is equal to a into dt. इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड विद द प्रॉपर लिमिट्स. इसके बाद हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद द प्रॉपर लिमिट्स. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. dv by dt. Acceleration is a vector quantity. It possesses the magnitude as well as the direction. Acceleration is equal to dv by dt. That is dv means rate of change of velocity in the due course of time, and this is called as acceleration. This is called as acceleration. Now the equation second, integrating equation second with the proper limits. इसके बाद हम यहाँ पर इस equation को integration कर लेते हैं. तो integration क्या है, integration is defined as the reverse of the differentiation. तो differentiation में हम क्या कर लेते हैं, we have to find the slope of a line. In the integration, integration is nothing but it is the summation, or we say that it is the addition. Now the integration from dv is equal to integration a into dt. तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं that is u to v, initial velocity to the final velocity is equal to a into dt. यहाँ पर this is called as upper limit, lower limit, and this is called as upper limit. o to t, that is जब यहाँ पर इस लड़की की पोजीशन o से टाइम क्या आया था t, a into dt. So integration from u to v dv is equal to, यहाँ पर a एक्सेलरेशन को बाहर निकालते हैं, टाइम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं dt की. तो इंटीग्रेशन जो हमारे यहाँ पर dv की होती है, द इंटीग्रेशन ऑफ द dv. इसके बाद हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द dv दैट इज v फ्रॉम u to v, that is upper limit to lower limit, is equal to a. डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन होती है dt की that is t minus 0. सो यहाँ पर इक्वेशन बन गई v minus 0. तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू a into that is t minus 0, v minus u is equal to a into t that is at, v is equal to u plus at. तो यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी किसकी मदद से, ऑन द कैलकुलस अप्रोच. ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं क्लास 11th में. ठीक है, v is equal to u plus at. जब हम इसको कैलकुलस अप्रोच पर जब हमें इसको सॉल्व करना होगा, प्रूव करना होगा, तो यहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वी हैव टू नीड द इंटीग्रेशन, ठीक है. तो अब हम इसी इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं ऑन द ग्राफिकल अप्रोच. इक्वल टू u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration and t is time. तो इस इक्वेशन को जब आपको ग्राफिकली प्रूव करना होगा तो आपको क्या बनाना होगा, वी हैव टू नीड द ग्राफ. ठीक है, तो ग्राफ की जरूरत पड़ती है, दैट इज द x एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं एंड द y एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी. ठीक है, लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. तो यहाँ पर कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u. ठीक है, एट टाइम इज इक्वल टू o. दिस इज नॉट एट जीरो, दिस इज o, दैट इज द ओरिजिन, v इज द फाइनल वेलोसिटी. इसके बाद यहाँ से बॉडी एक्सेलरेट होती है तो यहाँ पहुंचती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t. किस टाइम है, दैट इज टाइम t. इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर दिस इज द इमेजिनरी लाइन. ठीक है, इसके बाद हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं विद द x एक्सिस. तो यहाँ पर जो हमारा इसमें ये बन गया
यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर क्या है, दैट इज थीटा। थीटा क्या है, एंगल। सिंस यहाँ पर क्या करें, एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। वी नो दैट जब बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या आती है, एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी इट पोजेस सम एक्सेलरेशन। तो बॉडी किस में आती है, एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन दैट इज डीवी बाय डीटी, वेयर डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वेयर द डेल्टा मींस चेंज। डेल्टा क्या होता है बच्चों, दैट इज चेंज, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल, यहाँ पर जब हम देखते हैं जो वेलोसिटी चेंज होती है कहाँ से कहाँ तक, दैट इज u माइनस वी। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। किस टाइम में, जब बॉडी ओरिजिन पे थी, t माइनस ओ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं a इंटू टी, दैट इज at इज इक्वल टू v माइनस यू। इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज होता है, ट्रांसपोजिशन मेथड, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो पता चला कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, वो इसके इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होती है प्लस उसकी एक्सेलरेशन विथ टाइम, ठीक है। तो यही इक्वेशन जब आपको प्रूव करना होगा बाय द ग्राफ के लिए, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर हमारी चैनल लोन एकेडमी पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।